कि सारी दुनिया हमारा कुटुंब है, परिवार है, तो वो धनबुरी वाली बात नहीं रह जाती है। Although when I go back to Canada, my Yugo wants to know all about the course. Should I just explain the whole course to her? पूरा कोर्स में क्या अपनी युवा को दे सकता हूँ? हाँ जी, Right from day one to. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Okay. Okay. So don't hold back. Just. हाँ जी, वो अगर कोई बात नहीं भी समझती है तो उसे प्यार से समझाइए, नाराज होके नहीं, है ना? If she is unable to understand something, yes. you try to make her understand in a yes. politely, and not in a fit of that's anger. not my. बहुत सी बातें उसकी जहन में नहीं बैठेंगी, अगर नहीं भी बैठती है तो उनको एक तरफ रखते जाइए, दूसरी बातें आगे बढ़ाइए। There might be many things which she won't be able to understand. Sure. Leave them aside and tell her about the other things. Okay, that makes sense. क्योंकि शिव बाबा को परिचय तो दुनिया में सभी चाहते हैं, नास्तिक से नास्तिक आत्मा होती है, उनको भी से की होती है ये सुख क्या चीज है। तो सब बातें हैं, टोटल लक्ष्य यही रहना चाहिए, हमें ऊपर वाले का पूरा परिचय देना। Because the whole world, even those who don't believe in art, even they will also have a curiosity to know about Shiva. Oh yes. She's very. So we should have one aim and objective, that we will be revealing everything about the Almighty. Okay. When we're in Armad Vela and we're sending good vibrations to family, are we seeing them as souls, or are we seeing them as body with the soul, and what is it that we're actually thinking to them? किसी को शक्ति देनी है तो किस तरह शक्ति देनी है, उसकी आत्मा को याद करना, फिर उसके शरीर को याद करना। उसे क्योंकि बात करेंगे तो चेहरा सामने आएगा, बात करेंगे तो मोस्टली बाबा की याद के साथ साथ उस आत्मा को सर्चलाइट देते हुए, ऐसे नहीं समझ रहे हम आंखों से देख रहे हैं, हम तीसरे नेत्र से बाबा के साथ उसको सर्चलाइट दे रहे हैं और उससे बात कर रहे हैं। तो शरीर को भी देखना पड़े और आत्मा को भी बीच में याद करना पड़े, दोनों का। Then the body, and when you give them good vibrations, you should first remember their soul first and then their face. Okay. Because through the face only you can get to recognize that identity okay. in any person. Yes. He will come to you through his face only, through his body only. Okay. So even when you see them, you should be not seeing them openly in your bare eyes. Yes. You should see them through the third eye. Yes. That we are giving drishti along with Shiv Baba to them. Okay. Baba, they say to have good wishes for everybody. What exactly do you mean by good wishes for everybody? वो कहते हैं हरेक को शुभकामनाएं दे, तो हरेक को शुभकामनाएं दे, इसका मतलब क्या है? झाड़ का बीज है एक है, उस बीज को अगर हम याद करते हैं तो सारे झाड़ को अपने आप शक्ति मिलती है, शुभकामनाएं मिलती है। He is the seed for the whole tree. That's right. So if we remember the seed, if we pass on the good wishes to the seed, it will be automatically passed on to the whole tree. So we don't have to pass vibrations to the whole trees individually. So the focus is on. Focus upon the seed. Yes. If we focus upon the seed, it will be passed on to the whole tree. Okay. उसके लिए जानना जरूरी है, who is the seed of this whole world? Shiv Baba. Yes. Yes. Not Shiv Baba. Yes. But Shiv Baba. Yes. The two merged. स्वतः ही मिलता है। उसे एक और फायदा है, बुद्धि विचलित नहीं होती है, इधर उधर बुद्धि भटकेगी नहीं। सबसे बड़ा हमको फायदा ये होगा। The seed of the tree is Shiv Baba. Yes. So when we remember Shiv Baba, our mind will not get distracted here and there. Yes. It will remain constant. Okay. So first we have to realize who is the seed of that tree. Yes. When we realize that,
can pass in the good vibrations. जो प्रजापिता और शिव बाबा में क्या अंतर हो गया? प्रजापिता इज सिंगल सोल हीरो पार्टधारी, एंड शिव बाबा क्योंकि हीरो पार्टधारी इज कनेक्टेड टू होल, अच्छा ये होल ड्रामा 5,000 वर्ष के ड्रामा से कनेक्टेड है, और शिव सुप्रीम सोल वो सिर्फ संगम युग से कनेक्टेड है। शिव बाबा सिर्फ संगम, शिव बाबा नहीं, शिव बाबा, लेकिन शिव बाबा और प्रजापिता का अंतर वही शिव बाबा नहीं, शिव बाप। वो तो मैं समझ रहा हूँ शिव बाप का, लेकिन शिव बाबा भी एक चीज है और प्रजापिता भी एक प्रजापिता इज द हीरो पार्टधारी ऑफ दिस वर्ल्ड। प्रजापिता संगम युग का नाम है। शिव बाबा पूरे ड्रामा, शिव बाबा पूरे ड्रामा का, क्योंकि वो एक मुस्लिम बोला है ना, अनुवाद करते हैं। Prajapita is actually the identity of only the confluence age, whereas Shiv Baba is the identity of the whole drama of 5,000 years. शिव बाबा जो है वो 5,000 साल का एक पहचान है, हाँ जी, हाँ जी, और प्रजापिता जो है वो सिर्फ संगम युग का एक पहचान है, नाम है। हाँ, संगम युग के पहचान का नाम है। शिव बाप सिर्फ संगम युग से कनेक्टेड है, शिव बाबा सुप्रीम सोल। Supreme Soul is just connected to the confluence age. Exactly. Sangam. Yes. Whereas Shiv Baba is connected to the all 5,000 years. Okay. हाँ, वो बात बता रहे थे, जैसे मुस्लिम बोला है इस सृष्टि पर सदाकांड कोई चीज है नहीं, सदाकांड तो एक शिव बाबा ही है। तो जहाँ सदाकांड की बात आ गई, जवाब आ गया है, इसमें जवाब आ गया। ये मुरली का महावाक्य है। इससे ये साबित हो जाता है कि शिव बाबा जिसको कहा गया है वो ऑलराउंड पार्टधारी है 5,000 वर्ष के ड्रामा में। In the Murli it has been told in the drama of 5,000 years, Yes. no one will stay forever. That's right. So the one who stays forever is Shiv Baba. Yes. So actually Supreme Soul he stays only for Sangam Yuga. Yes. But in whom he enters, Yes. he will be the identity who will be staying in this world for 5,000 years. Those different words. So Yes. Supreme Soul it is only for conscience. Fixed for that time, and then he returns. Yeah. But in whom he enters, he will stay for the whole 5,000 years. Okay, I understand that. I'd like to thank you very much for all, I know I shouldn't say formalities, saying thank you for everything that you've done for me and made it as comfortable as possible. From here, Kampurl, etc. आपने जो भी किया हमको यहाँ से कंपील गए आए उसके लिए जो भी सहयोग दिया हम बहुत आभारी है, बहुत धन्यवाद। इसके लिए कौन जरूरत है? ये तो अपना अपना धंधा है, ये धंधा है। Just tell Baba. जो धंधा करेगा वो उतनी कमाई करेगा, इसमें किसी के ऊपर एहसान थोड़ा ही है। This is our business. We are doing business. So how we do business, we will gain like that. Yes. So there is nothing to be obliged for. Okay. Just tell Baba that you keep reminding me that. So. हाँ, पहले दिन से इन्होंने धन्यवाद 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 कहते हैं। नहीं आदत पड़ी हुई है ना, फॉरेन कंट्रीज में इस बात को बोलने की, बार बार बोलने की आदत पड़ी हुई है। लेकिन वास्तव में क्यों कर्म की थ्योरी जितना इंडियंस मानते हैं उतना विदेश में कर्म की थ्योरी को नहीं मानते हैं। तो वो कर्म की थ्योरी को न मानने के कारण बार बार धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन वास्तव में इसकी जरूरत नहीं है। जो जितना करेगा अपने लिए करेगा, दूसरों को सुख सुविधा जितनी देगा वो अपने लिए देगा, वो किसी को देता नहीं वास्तव में। बताओ। See, actually, it is a tradition in the foreign countries to always thank you. Okay. So actually, the theory of your duty, Yes. of your karma, actually only Indians understand that. Okay.
foreigners won't be able to understand the reality of that. इन क्रिश्चियंस नहीं मानते हैं अनेक जन्मों को, मुसलमान अनेक जन्मों को नहीं मानते हैं, इसलिए कर्म की थ्योरी रह जाती है। और इंडिया में कर्म की थ्योरी को मानते हैं 84 के चक्र से कनेक्टेड, कि आत्मा अनेक जन्म लेती है। क्रिश्चियंस और मुस्लिम जो है वो कर्म की थ्योरी की इसलिए नहीं मान पाते कि वो अनेक जन्मों को नहीं मानते। Indians tend to realize that the theory of karma, the theory of your cycle, of your previous birth, of your next birth, just because they believe in rebirth. Yes. Christians and Muslims don't believe in rebirth. Okay. Only Indians believe in rebirth. Okay. So that is why it is a tradition Okay. in foreign countries to be thankful of. Okay. And Baba also added one more thing, Yes. that whatever a person does, he does for himself. That is, he does good for others, he will be regaining Okay. the good deeds. Yes. दूसरों को स्नेह देता है, दूसरों को सहयोग देता है, Yes. वो वास्तव में दूसरों को नहीं दे रहा है, Okay. खुद ले रहा है, उसका अगले जन्म के लिए इकट्ठा हो रहा है। So actually all the good deeds he does, he gives all the obligement, so it doesn't do for others, he gets that in return in his next birth, Oh, I see. Okay. in his next birth. Okay. So what all he is doing, he will gain for himself in the coming births. So when you see beggars, for example, there's lots of beggars in India. Is it advisable to give money, or it's no good idea, or because my heart wants to give the money, but भिखारी लोगों को मैं जब भी देखता हूँ भारत में इतने भिखारी लोग हैं, इतने भिखमंगे लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो मेरे अंदर से जी करता है कि मैं इनको कुछ दान दूं। क्या मैं दान दूं या नहीं दूं, क्योंकि मेरा आदत है, थोड़ा लगता है मुझे कि इन्हें कुछ दे, क्या मुझे देना है नहीं। लेकिन आप देंगे तो जाके शराब पी आएंगे जाके, आपका और पाप बन जाएगा। Suppose you give, he will get drunk from the money he gets. So instead of doing any good, he will be taking all the bad deeds of that. so you'll be adding, like they say, more fuel to the fire. आग में और थोड़ा तेल डालने के बराबर हो गया। और अगर किसी की प्रैक्टिकली हेल्प करें, प्रैक्टिकली किसी की हेल्प करें तो वो ढंग से बने, बजाय दान देने के। हाँ। किसी के वैसे मदद की जरूरत है और हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में है, हम उसकी मदद कर सकते हैं। मदद तो भिखारी को करना, वो भी मदद ही हुई ना। वो तो पैसे से की है, पैसे से नहीं। मसलन हमारे इख्तियार में है, उसे काम देना है, काम दे सकते हैं उसको। जो भीख मांगने वाले वो आपका काम नहीं लेंगे, अगर वो काम करने वाले हो। भीख देने वाला नहीं, वो कोई और है जो काम लेना भी चाहता है, उसकी भी हेल्प कर रहे हैं। हाँ, जो कोई धंधा चाहता है और हम उसको धंधा दे सकते हैं जी, तो वो कर सकते हैं। हाँ जी। क्योंकि इनका इसी तरह का एक सवाल ये मुझसे पूछ रहा है, तो मैं उनसे भी पूछ रहा, हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक भाई हैं, डॉक्टर हैं, वो कनाडा जाना चाहते हैं, ये उसको बुला भी सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं, क्या उसकी हेल्प करें ना करें? ये किस तरह हेल्प करेंगे? उसको स्पॉन्सर कर देंगे, वो वहाँ चला जाएगा। मसलन वहाँ उसको कोई जगह दे दें लेकर, वो अपनी बिजनेस वहाँ शुरू कर देता है, प्रैक्टिस शुरू कर देता है अपनी। एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, वो वहाँ जाकर सेटल होना चाहता है, क्योंकि वहाँ उसके लिए बहुत डिमांड है। वहाँ जैसे गवर्नमेंट की रिकग्निशन अभी नहीं मिली है होम्योपैथिक को, तो अगर कोई भी वहाँ अपने प्रैक्टिस शुरू कर दे तो वो काफ़ी प्रॉस्परस हो सकता है। तो इस तरह से इनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, इन्होंने तो सिर्फ उसकी थोड़ा उसे एस्टेब्लिश करने में थोड़ी मदद की। उसमें एक बात और आती है, बाबा जी बोलते हैं कि पहले अपनी जाति की मदद करनी चाहिए, अपने परिवार की मदद करनी चाहिए। अपने परिवार के बच्चे भूखे मरते रहे, हम बाहर दान बांटते रहे, उससे फायदा नहीं होगा। पहली जरूरत है हम अपने परिवार को देखें, फिर परिवार के बाद अपने गांव को देखें, फिर उसके बाद धीरे धीरे दायरा बढ़ाते चले जाएं। XYZ कोई भी आए और हम उसको यूं ही सहयोग देने की सोचते रहे, क्योंकि स्वभाव संस्कार किसी का पता नहीं होता है।
बताओ। Are you going to explain something? Yeah, the brother asked, you asked that monetary help, you have asked about the monetary help which Yes. you can provide to a beggar. The Yes. brother asked one more thing. Suppose we don't provide the monetary help, we can help him in another way, give him some work. Yes. How I told that if we had a will to do the work, he would not beg. That's true. He didn't had the will to work, therefore he has taken begging. That's true. Yes. So the brother asked one more thing. We could help him in another way to help him establish his business. Baba, okay. So he added one more thing. There was some discussion going on between yourself and him Yes. about one homeopathic doctor Yes. who could come to your place. You could sponsor him. Yes. You don't need to do anything, just sponsor him. Yes. Baba told that it is not a matter of helping any XYZ. Yes. First, we have it should not be in such a way that our own family are dying in hunger and we are providing food for some other people. Yes. So first we shall do all the help we can do for our family, Yes. then our village, and let us establish our establish our circle slowly. Okay. So it should be in from a source, Yes. from your family. It should start from your family, from your society, from your village, like that. Okay. Any XYZ person coming asking for help and we helping, because we don't tend to know what each and every person's natures, Yes. his sanskars. Yes. We might not get to know what the other person's sanskar might That's be. true. So how can we help him? That's When true. we could do a lot of help for our own. Because, yeah. Yeah. Circle influence. First, we should do in what all service we can do in our circle. Okay. Then let us move Okay. outside. Well, as far as the cycle is concerned, the 5,000-year cycle, in Canada there's very big parks dedicated to dinosaurs. What do people say about that? And somebody will ask me, well, what about the dinosaurs that were billions of years old? What do I say? दुनिया में कहने के लिए बहुत ढेर सारी बातें ऐसी हैं कि लोग कहते हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं उन सारी बातों को क्या हमने उनका आदि और अंत, कारण और कार्य के आधार पर विश्लेषण करके देखा है? So, Baba is telling there are many things in the world people will always be telling of. Have we seen the beginning and the end of all the things they are telling? No. Have you ever No. examined the beginning and end No. of all the things they are telling? Okay. So just How- just pose that we have question. never tested Yes. that. So how can उन्होंने जो हड्डियों को टेस्ट किया है और टेस्ट करने का उनका जो तरीका है वो हम तो नहीं जानते। उन्होंने किस तरीके से ये कैलकुलेशन निकाल लिया कि डायनासोर हजारों और लाखों वर्ष पुराना है, तो हम उस संबंध में कुछ कह नहीं सकते। इतना कह सकते हैं कि डायनासोर जैसा कोई प्राणी आज से 2500 साल पहले हुआ होगा। we don't know what their carbon dating methods are there Okay. to find out that these bones of the dinosaurs are of such old, such billions of years old. Yes. We don't know about their theory, how they have found out, what theory they have made up Okay. to find out that by testing in such a way it will be so old. So we can't say anything about that. But one thing can be told, that a thing like dinosaur Yeah. could be there about 2,500 years ago. Okay. क्योंकि सिंध, हड़प्पा की और ग्रीस, मेसोपोटामिया की खुदाइयों में जो चीजें मिली हैं उनकी एज पहले वैज्ञानिकों ने 5000 साल से पुरानी कोई चीज नहीं आकी गई है। अब ये डायनासोर की बात कहाँ से ऐसी निकल पड़ी? The excavations which have been
found in these places. Mesopotamia, Greece, खुदाई Greece, Mesopotamia, Mohenjo-daro, in all these places, it has never been told that it is above 5,000 years old. Okay. So in how they have found out that all the bones of the dinosaurs are Billions. billions of years old, that can't be. Okay. Do I have a limit of questions I can ask? Or no? प्रश्नों की कोई मिति है क्या मैं जो You know how there's some souls that are degraded, like let's say, for example, Hitler's soul, Adolf Hitler's soul, right? For me, I can't see it getting any worse. Can those souls get worse? And what happens to these souls? जो आत्माओं की पतन की बात है ना, जैसे हिटलर की बात किया, हिटलर ये मानते मतलब बहुत पतित आत्मा है, क्या उससे भी वो और नीचे गिर सकता है क्या? जैसे जैसे कोई भी बीज बार बार बोया जाता है तो नीचे ही गिरता है, उसकी क्वालिटी घटती है। ऐसे ही सोल है, उसकी क्वालिटी घटती ही जाती है जो जो जन्म लेती जाती है। क्राइस्ट के लिए तो बाबा कहते हैं अभी कहीं बैगर के रूप में है, भीख मांगता फिरता है। तो मतलब है कि हिटलर से भी ज्यादा कोई जालिम हो सकता है अपना? क्यों नहीं? जन्म में? क्यों नहीं? क्योंकि उसने तो लाखों जूस को गैस से मरवा दिया। गैस छोड़ी थी उसने उन्हें बंद करके यहूदियों को, और वो मर गए थे 10 लाख से भी ज्यादा। इतना जालिम था वो तो उनको खत्म कर देना चाहता है। तो उसके बाद अगले जन्म में वो उससे भी जालिम बनेगा क्या? वो एक आत्मा नहीं है, वो भी तो एक आत्मा है ना जी। बाबा तो कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया है ना, राइट वे में भी और बैड वे में भी। अच्छे से अच्छे काम करने में भी तुम्हारा बाप है और बुरे से बुरे काम करने में भी तुम्हारा बाप है। नहीं तो बाबा को ये कहने की क्या दरकार है? कृष्ण ही कंस बनता है, राम ही रावण बनता है। क्योंकि जुल्म की भी एक हद होती है, उस हद से भी कोई नीचे गिर जाए। जुल्म सत्युग में नहीं होता, त्रेता में नहीं होता। जुल्म से जुल्म टकराता है और उसके लिए जरूरी है बैलेंस रखने के लिए। उनको समझ में आए और अलग से तो इनको समझाने का है, तो पुराने हैं। Baba told that why not? That is, you asked about Adolf Hitler. Can he degrade much lower than what he was? Baba told why not? Because the more soul is like a seed. The more times you sow it repeatedly, its quality degrades naturally. Okay. Regards to Christ only, Baba has told Christ might be a beggar by now. Yes. Might be roaming here and there. Yes. So over time, over the period of time, he might have become a beggar by now. So naturally, a soul degrades. yes. So the brother asked in such a way. See, Adolf Hitler was such a brutal murderer that he killed more than 10 lakh Jews by poisoning them in gas chambers. So can there be much more person more brutal than him? So Baba actually told that. It has been told in Murli that, "Oh children, I am your father. In the right way also I am your father. In the left way also I am your father." नहीं, और एक और वाक्य है, राम ही रावण बनता है। In another Murli it has been told that the Ram, he only becomes Ravan, and the Krishna, he only becomes Kams. So why not? You will be much more brutal than you ever think of. समय के अनुसार भावना देखी जाती है, कल्याण की भावना के आधार पर विश्व के कल्याण के लिए जो किया जाता है उसमें भावना देखी जाती है कि पीछे से भावना क्या है। It depends on what the aim and objective of your activity is of. Because whatever it might be, if the objective is to take the world back to its golden position, so even the deed which is considered to be bad, it is not as such in reality.
we can say we take some bitter medicine Yes. for our cough. It might be bitter when we take, Yes. but the objective is to swallow that bitter medicine to get rid of the cough we are having. Yes. So in the same way, even that brutality, if it is having the objective of bringing the society back to the golden age, Yes. it is not considered a bad. Okay. It is a balance. इसलिए बोला है मिरुआ मौत मनु का शिकार। मिरुआ मौत मुस्लिम बोलते हैं ना, मिरुआ मौत मनु का शिकार। शिकारी को शिकार मिल जाता है और जानवरों की बेचारे की मौत हो जाती है। It is told in ये दुनिया जब विनाश होगी ना, जानवर जैसे हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, अब तो उसको विनाश को करने वाला है वो विश्व का वासा बन जाएगा। See, it has been told in Murli, Mirva Maut Manu ka Shikar. Means he is the hunter and the animal gets hunted. So the hunter gets the hunt, the wild animal, it will become dead. Okay. So in the same way, when the destruction takes place, those who are like the wild animals, they will have to die. That's right. They get hunted. Yes. And the person who becomes the emperor of the world, he becomes the hunter. Okay. बाबा लेकिन ये शिकार जो करते हैं तो खाने के लिए करते हैं, वाइल्ड जानवरों को खत्म करने के लिए। एक होता है स्वार्थ के लिए जी, और वही काम होता है परमार्थ के लिए। लक्ष्य में अंतर पड़ जाता है। He asked, but those who hunt for their food. Yes. So Baba told that one hunt is for selfishness, Yes. and one is for the betterment of the society. Yes. So गांव में शेर आ जाता है, ढेरों जानवरों को मनुष्यों को मारना शुरू कर देता है, उसका पूरा परिवार आ जाता है गांव में, और कोई व्यक्ति उन शेरों को सबको मार देता है, तो उसका लक्ष्य अलग हो गया। और एक शिकारी जंगल में जाता है और ढेरों जानवरों को मार देता है, वो अपने से स्वार्थ के लिए मार रहा है, वो परमार्थ के लिए मार रहा है, दोनों मार रहे हैं, दोनों की प्राप्ति अलग अलग है। see, Baba gave an example. See, a group of wild animals enter a village. Yes. They start killing all the animals, all the village folk. Yes. So one hunter, he shoots down all those wild animals. Yes. So there is another hunter who goes to the forest and hunts down wild animals for his passion. Yes. So there is a difference in their deeds, no? Yes. That's true. So Okay. the returns they get, it differs. Okay. So one who goes to the forest and hunts down wild animals for his passion, it is for his own selfishness, and one who does for the betterment of the village, to rescue the village folk from all these wild animals. So he is doing for the betterment of the society. So the returns differ in both the deeds. Both are deeds of the same kind. Both are hunting wild animals, but the returns different because the objective is different in both the deeds. Do animals fall under the same pretext? Like, do animals have the same? I know we're not reborn as animals, but do they have karmatic effect as well? Or? जानवरों में भी कर्म का कुछ हाँ होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सत्य में ऐसे खूंखार जानवर नहीं होते हैं, कर्म थ्योरी से कनेक्टेड है ना बात। मनुष्य जब आत्माभिमानी है तो जानवर भी आत्माभिमानी है, मनुष्य देह अभिमानी है तो जानवर उनसे ज्यादा देह अभिमानी बनने के सामने आ जाते हैं। मनुष्य के ऊपर सारा मदार है। Naturally, because in the golden age there will be no such kind of devilish type of animals. That's right. So today the human has degraded. That's right. So the animals have degraded much further. Okay. So in the Satya, our mentality will be very pure. So there won't be any kind of such beastly animals. It all depends on how a human is. You say the mind. Yeah.
depends on humans. Okay. It depends. When humans are auspicious, the animals will also be. When humans fall down, the animals also fall down much, become much beastly. When somebody in this life has lots of good fortune, wealth, they win lotto, they get all kinds of lucky breaks. Is it as a result of their past donations, their past actions, or मतलब किसी को ऐसे किस्मत खुल जाती है, लॉटरी लग जाती है, कोई डोनेशन कर देने वाले डोनेशन दे देते हैं, हर जगह उनको ऐसे ही सहयोग मिल जाता है, तो क्या है पिछले जन्मों के कर्म बिल्कुल सही था नेचुरली okay? बिकॉज ऑफ देयर पास्ट उन्होंने किया है तो उनको मिल जाता है. दे आर डन इन द पास्ट सो दे गेट इन रिटर्न. Is that usually their last birth or many births that they accumulate? पिछले एक जन्म की बात है या अनेक जन्मों का हिसाब किताब है. many births, Oh, okay. So many births previous. over. दूसरे तरीके आप दूसरे तरीके से आ सकते हैं. दूसरे कई तरीके पक्षी कई ऐसे हैं, ईगल हैं, उनकी नस्लें सिर्फ चंद रह गए जिनकी के एक दो उनको बहुत संभाल. पक्षी की कैटेगरी में ढेर सारे आते हैं. एक पक्षी की नस्ल खत्म हो जाएगी, दूसरा पक्षी शुरू हो जाएगा. एक की खत्म होगा, दूसरे तरीके का कीट शुरू हो जाएगा. कीटों की नस्ल अपनी जैसे मनुष्यों की नस्ल है. एक तरह की मनुष्यों की नस्ल खत्म हो जाती है, दूसरी तरह की नस्ल शुरू हो जाती है. दूसरे नस्ल हो जाती हाँ जी है. हाँ जी. और वो कई तरह के चीते हैं, शेर हैं, वो हाँ वो खत्म हो दूसरे शुरू हो रहे हैं. दूसरी तरह के. तो दुनिया में आबादी कम नहीं होती, पॉपुलेशन बढ़नी है हर एक की. चाहे कीट हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पतंगे हो, चाहे मनुष्य हो. The brother asked, we tend to see a lot of extinctions of many breeds of birds and animals. Yes. So, will their souls also get extincted? So, Baba told, one kind goes away, the other kind comes up of the same family. Okay. Same family, of the same family. Yes. So, never, the soul can never get, what do you say, extincted. Okay. The population of the souls, whether it be humans, whether it be of animals, whether it be of insects, they all will be on the verge of increase, never on the decrease. Okay. They can never get destroyed or go back. Okay. जैसे डायनासोर की बात आती है, डायनासोर है तो चौपाए, चार पांव वाला जानवर है ना, तो वो चार पांव एक तरह की नस्ल खत्म हो गई, दूसरे तरह की शुरू हो गई. Dinosaur also, it is also a four-footed animal. Yes. So one kind of four-footed animal got extincted, the other kind of four-footed animal took their place. Yes. Okay. I wrote some pota mail for you, but I'm not sure exactly what you want in the pota mail. Do you want it very brief and simple? Can you give me some breakdown as far as what you want in the pota mail? पोता मेल मैं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ वास्तव में क्या पोता मेल में वास्तव में क्या चाहते हैं. पोता मेल में बाबा क्या करने आए हैं वो देखना है. बाबा इस सृष्टि पर ये करने आए हैं कि ये दुनिया वैश्यालय न बने, शिवालय बने. बाबा दुनिया को शिवालय बनाने आए हैं, माने अब बेविचारी दुनिया बनाने आए हैं और बेविचारी दुनिया को खलास करने आए हैं, है ना. तो पोता मेल में वही बात लिखनी है कि हम अपने जीवन में सबसे मुख्य बात ये है कि हम अपने जीवन में किस उम्र में किस व्यक्ति के साथ कितनी बार किस स्थान पर कौन से समय पर कितने बेविचारी बने, विकारी बने, वो पोता मेल फर्स्ट देना जरूरी होता है. और बाकी क्रोध लोभ को अहंकार की और भी छोटी छोटी बातें, मुख्य बात तो काम विकार की. First, our main and aim objective of the Pota Mail should be of what is the real aim and objective of Shiv Baba in coming to this world. Sure. Shiv Baba has come to this world to get rid of this world of corruption. Yes.
Vyabhichari, which has become prostitution. Yeah. A lot of prostitution, all these things takes place. Sure. So the main objective, what we give in Pothamel, should be in our life. Yes. What, when, Yeah. at what age, at what time, at what place, with whom, how many times, in what way we have become dirty. Okay. Okay, thanks. That is the main objective. And the other things of anger, Yes. of greediness, of our ego, Yes. सामान्य बात है. that is all general. But the main is of this. Okay. Lots of questions. We talked about not being body conscious, right? But I'm very tall, so if I don't look for things, then I'll hit my head, right? So I have to be body conscious. How do we keep the two? For example, when I was in Kampro, right? It's very narrow. Yeah. So if I'm not body conscious, I'm always hitting my head. So how do we balance being soul conscious and body conscious at the same time? Because I hit my head many times in Kampro. बोला जाता है हम आत्माभिमान में रहना है. मतलब उन्होंने अपना उदाहरण दिया, अगर मैं देहभान में ना हूँ, अगर मैं ये ध्यान नहीं रखूँ कि मैं बहुत ऊंचा हूँ, तो हर बार मुझे कंपिल में झुक के जाना पड़ता था. नहीं तो हर बार मुझे लगता था अगर मैं आत्मिक स्थिति में ही रहूँ तो मैं दोनों बातों को कैसे मैं बैलेंस कर सकूँ. नहीं, आत्मिक स्थिति का मतलब ये थोड़ा ही होता है कि सीधा होकर के ही चलना है तो आत्मिक स्थिति है. आत्मिक स्थिति का मतलब ये है कि कोई गलती ना हो. आत्मिक स्थिति जहाँ होगी, स्वरूप निष्ठ जहाँ होगा, वहाँ गलतियाँ नहीं होंगी जिससे न हमको नुकसान हो न दूसरे को नुकसान हो. The soul conscious state doesn't mean that you should always stand upright and be moving. No, the meaning of soul conscious state is that no wrong deeds happen. Okay. Nothing wrong goes. Okay. Nothing wrong happens. Okay. It doesn't अपने लिए या दूसरों के लिए. for yourself or for others. Yes. Okay. Actually, Murli had one example. It should not be in such a way that we are in the remembrance of Baba and the milk goes boiling on the stove. That's true. Yes. We should never complain Yes. that I was in Baba's remembrance and the milk boiled over. That's true. When we're approaching other BKs about this knowledge, what is the best way to approach them on this advanced knowledge? दूसरे बीके लोगों के संपर्क आने से मैं किस तरह से उन लोगों को एडवांस नॉलेज का परिचय दे सकूं? Should I send a video? Should I send a letter? ये पहले से सोचने की दरकार नहीं है. हिम्मत करो, उनके सामने पहुंच जाओ, बाबा सारी मदद करता है. It should not be decided previously. Okay. It should not be pre-planned. Okay. It is not that which is pre-planned. You come in front of them, Baba will give you the power. What to do? Okay. आप हिम्मत करिए सिर्फ. You proceed. Okay. You show courage in proceeding. Okay. It will never be pre-planned. Okay. हमेशा ऐसे समझना चाहिए कि हम सर्विस नहीं करते, हम तो तामसी आत्मा बन पड़े हैं आखिरी जन्म में. बाप दादा हमारे से सर्विस कराता है. हमारे से जो भी सर्विस हो रही है वो बाप दादा कर रहा है, करा रहा है. करण करावनहार वो है, हम तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है बस. We should never think that we are the ones who do service. We are such a soul which has fallen down in body consciousness. He is the one who does, and he does it himself and gets it done through us also. He is the one who does all the service. We should never have this thing in mind that we do the service. Only Bab Dada does the service.
Baba does the service through us. We are just an instrument through whom Baba gets the service done. Okay. I don't think I have any other questions right now, but just let Baba know that if I do, I will email him and ask any questions in the future. प्रश्न का समाधान हो गया. आगे कुछ कहता हूँ. कभी कभी ऐसा होता है बाबा सामने आते हैं तो प्रश्न साफ खत्म हो जाते हैं, पीछे से बाद में ढेर सारे प्रश्न खड़े होते रहते हैं. एक डायरी अपने पास रखना, जो प्रश्न आते हैं उनको लिखते जाना. सर्विस फील्ड में जब होते हैं तो ज्यादा प्रश्न दूसरों से हमारे सामने आ जाते हैं, वो लिखते जाना. जिनका समाधान अगर जब कभी टाइम मिले ईमेल से कनेक्शन करें या बाबा के आमने सामने आके कनेक्शन करें. वहाँ कनाडा से तो आप और ढेर सारी बातें पूछते रहते थे और यहाँ सामने आके I was telling that mostly it happens in such a way that when anybody comes in front of Baba, all his questionnaire will stop. Yes. He will have no questions. Yes. But when he comes in contact with others, when he goes for service, when he comes in the service field, Yes. so mostly all the questionnaire emerges again. So you always keep a small diary with you. You note down all the questions which you need to get clarified from Baba. Okay. From you can always get it clarified through email or when you come in person. Okay. You might have realized that in Canada you had a lot of questionnaire, but coming in front of Baba, all that seemed to have disappeared. Yeah. It's true. इसका खान पान अच्छा साथ तो क्या पूछने की जरूरत नहीं. नहीं, खान पान के बारे में कैसा है क्या? What about your food habits? In how is your dharana about the food habits in your Purusharthi life? Tell Baba that I eat very simply. You see how I eat. And so when I was in Kamprul and when I was in Farkuban, they made some changes for me to eat more simply. Not about it. Oh, in life? In your life. I usually eat twice a day. In the morning I just eat fruit. In the night I have rice, some sweet peas, a little bit of yeast, a little bit of salt, and that's it. My only fall is I like salty chips. वो ये मतलब बाहर खाना ज्यादा रहा है या अभी बाहर ज्यादा खाते हैं या घर के अंदर ही बना हुआ खाते हैं? Will you eat the food which you prepare in your own house, or will you eat outside also? No, I don't like to go out and eat. बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता. I don't like to. The only other person's food I'll eat is my wife's, my Eagle, she prepares. अगर किसी और व्यक्ति का खाना हो रहा है तो मेरे ईगल का हाथ का खाना हो रहा है, बाकी मैं बाहर कहीं खाता नहीं. अन्न दोष और संग दोष ये बहुत ज्यादा मारता है ब्राह्मणत्व को. The company we keep and the food we eat. These two things are most which hurt us in our Brahmin life. Yes, it's true. It becomes necessary for us to be away from bad food and bad company. It's true. हीरो पाठधारी को ही कहिए जिसने बाबर बन करके बाबरी मस्जिद बना दी और ये बता दिया दुनिया को कि राम की मूर्ति स्थापन करने से दुनिया का कल्याण नहीं होगा. क्या अनेक मूर्तियां जो बना दी है उससे दुनिया का कल्याण हुआ. बुद्धि भ्रमित हो गई. एक ही मूर्ति रहनी चाहिए, एक शिव बाबा दूसरा न कोई. बातों से कोई बात आ गई नहीं. संग का रंग लगता जरूर है. क्या लोग भगवान का झूठा खाना पसंद करते हैं, कुत्ते का झूठा खाना पसंद नहीं करते. ये तो देवता है. कारण क्या है? कारण क्या है? वो गंदा है. ये बिचारी है ना, गंदा है, गंध है ना, तो गंध के साथ खाने से गंदा असर पड़ेगा. श्रेष्ठ के साथ संग करने से श्रेष्ठ असर पड़ेगा.
और सबसे श्रेष्ठ तो शिव बाबा है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जैसी प्रैक्टिस डालेंगे वैसी प्रैक्टिस पड़ जाएगी। सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है बस। तो मन को तो कंट्रोल में रखना है। स्वराज्य अधिकारी में मन तो पहले आ जाता है। हमेशा एक वाक्य तो हमें हमेशा अपने साथ रखना ही रखना है, श्रीमत से सदगति, मनुष्य से दुर्गति। इसमें सब सार आ जाता है ना। बाबा ने जो कुछ मुर्दे में बोला है उस पर चलने से सदगति ही सदगति है, सुख ही सुख रहेगा। और जितना हम अपनी मनमत चलाते हैं, दूसरे मनुष्यों की मत पर चलते हैं, तो उससे दुखी रिजल्ट मिलेगा। Srimad. If we follow Srimad, we will get the upliftment. Sure. If we follow Manushyamat, means of Others. Yes. directions of others, we can do. Sure. और इनको बताओ कि कभी भी डेली कनेक्शन करना अच्छा है। ये नहीं सोचना कि बाबा बहुत बिजी हैं तो बाबा को नहीं लिखना चाहिए। जितना मौका मिले उतना बाबा से लेना अच्छा है। Never think that Baba is very busy, I should not ask all these. Sure. Never. When you have got the opportunity, Yes. always Take advantage. ask Baba through email. Write email, take directions in each and every step. The more you write, the more directions you get. Sure. So, Baba's into naturopathy, isn't it? बाबा का नेचुरोपैथी है क्या? हैं? अभ्यास बाबा का अभ्यास नेचुरोपैथी है क्या पूछ रहे हैं? नहीं, अभ्यास नहीं है, लेकिन नेचुरोपैथी अच्छी है, अच्छी। और जो पैथीज हैं उनके मुकाबले नेचुरोपैथी इज द बेस्ट। Of all the other medication process, Yes. naturopathy is the best. It's the best. Baba recommends. It is better. क्योंकि तो बाबा ने मुझे बोला मुसलमान भीख मांगेंगे, और उन्होंने जितनी आतताईपना किया ना उस हिसाब से उनको फिर नॉलेज के लिए अभी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। इंडिया की नॉलेज को, इंडिया क्या चीज है, ईश्वरीय नॉलेज को भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। सबसे ज्यादा पिछड़े हुए वर्ग में है ये मुस्लिम। सबसे ज्यादा हाँ, उनके दादियों ने ना और पिछाड़ के पीछे कर दिया। दादियों तो बीज वो है, हालांकि रूट बीज हैं, लेकिन वो नेगेटिव को रिपल्स करता है। वो नेगेटिव, वो रूट है। वो इसलिए वो इस्लाम को, उर्दू को तो वो अहमियत देती ही नहीं। मैंने उसको कई दफ़ा कहा भी था कि उर्दू में करें, कुछ मैं लिखने को तैयार हूँ, मैंने उन्हें किया भी, तो कभी तैयारी नहीं होती उर्दू को। कहते हैं जगदीश भाई करेंगे। Baba told her, he asked, I have done a lot of translation with regards to Urdu. Yes. Murli's book, many things. Yes. Baba told, yeah, when time comes, all these things will have a lot of significance and importance, because in Murli it has been told Muslims will beg in the coming future, because all the bad deeds they have done in the history, in the past births. So for that they will be the ones who will beg most for the knowledge, because today they are not giving any importance for what India is, what India's knowledge is about. But when they tend to realize, they beg like anything for the knowledge. और वो भीख मांग के भी पहले मरेंगे, जीतेगी। So ईश्वरीय नॉलेज में भी और दूसरी कम्युनिटीज के मुकाबले पहले मर जाएंगे, जीते जी मरेंगे। इसलिए मुरली बोला है सबसे पहले सरेंडर होगी माया। इतनी पावरफुल है, इतना विरोध तो वो किया। इस्लाम धर्म का भी आधार है। लेकिन उसे बाबा ने नियुक्त किया है ना, ऐसे ही समझ लो कि इस्लाम और मुस्लिम को बाबा ने नियुक्त किया है, लोहे से लोहा काटा जाता है, उससे विष मारा जाता है। इसलिए ड्रामा कल्याणकारी है, जो हो रहा है सब अच्छा है। Baba was telling that in the same way, even in
here also, Muslims community is the one. That is, this is a tree of all the communities. Yes, that's right. So, Muslims community. So, they are the ones among all the communities. Even though they beg, they are the ones who will die first of body consciousness. Wow. Here. Because nowadays, in the present, this one, Muslim community is the one which is downtrodden of all the other. Yes. So they are the ones who will die of body consciousness first. That is why in Murli it is told, first and foremost, Maya will come and surrender Yes. before. Wow. Maya means one which is connected to the Islam-Muslim Okay. dynasty. ये वंडरफुल बात बोल दी है। बहुत वंडरफुल है। पर ये हो भी रहा है इसी तरह दुनिया में। इसने सबसे ज्यादा अपोजिशन किया नालिश को लेकर के, वो सबसे पहले नालिश को ग्रास्प करके सरेंडर हो जाएगी। ये तो चमत्कार हो जाएगा। परिवर्तन महान परिवर्तन। The one who has opposed the most Yes. in this knowledge, he or she will be the one who will be surrendering first and foremost Yes. in front of Baba. Okay. See, a wonderful thing Baba has revealed. So it is what transformation, Yes. a very big transformation will take place. Wow. Oh, another question. I want to give Baba a donation. बाबा को कुछ देना चाहता हूँ अभी, मतलब इनसे कहो आप खुद ही अभी बता चुके हैं, कर्ज लेकर के आए हैं, बाबा को क्यों देंगे? पहले अपना खर्चा चलाओ, बाबा को इतनी दरकार नहीं है। नहीं, अपने लिए नहीं बता रहे थे। हाँ। दूसरों के लिए बता रहे। क्या तुम वहाँ इतने भी गरीब हैं, कहाँ? खासतौर से वो तो बात पहले ही काट दी, वो तो बात पहले ही काट दी। पहले अपनी ह्यूमैनिटी को तो देखो, पहले ब्राह्मण परिवार को देखो, बाद में दूसरों को देखो। so Baba gave a reply in such a way that you yourself have told that you have come here by taking a loan. Yes. So Baba is not in such a necessity. First, look after yourself. Yeah, but I want to give something. Just. No? पहले आप अपना कर्जा उतारिए। First, you repay the loan which you have taken. Are you sure? Okay. I feel kind of foolish not to provide something. ये और वंडरफुल बात कि सबसे ज्यादा गरीब देश है इंडिया है, और विदेश को बहुत साहूकार समझा जाता है, और साहूकार जो विदेश है, उस विदेश में भी ऐसे बच्चे बाबा के पास आ रहे हैं जो लोन लेकर के बाबा से मिलने के लिए आ रहे हैं। कितने में हो, वहाँ तो गरीबी हाथ से ज्यादा हो गई। बाबा तो गरीब निवाज है, और गरीब निवाज इंडिया के लिए ही नहीं है, चाहे जहाँ भी हो गरीब, सभी के लिए बाबा। Baba is telling that Baba is for the downtrodden and the poor. So actually India is a very poor country. Yes. And foreign is considered to be rich Very rich. Yes. comparatively. Absolutely. But the wonderful thing is that the Baba's children, whether they are here or there, even though they are from the foreign countries which is considered to be rich, they come to meet Baba by taking loan. Yes. That's funny, yeah. That is funny. So the saying actually, Yeah. Baba is for the poor. So the poor people, whether they be in India or whether they be in foreign. That's true. So everyone. इससे साबित होता है कि आखिरी जन्म में फॉरेनर है, एक्चुअली और जन्मों में इंडियन है। So it proves through this that in the last birth you are a foreigner. In the all the लास्ट बर्थ last birth यू आर नॉट फॉरेनर्स। फॉरेन में जन्म लिया। हाँ, इस आखिरी जन्म में आपने फॉरेन जन्म लिया, ओनली इन लास्ट बर्थ। Only in the last birth you have taken birth in foreign country. That's right. The rest you were an Indian. Oh. This proves that since you are a Baba's child, since you are poor, it is proving. But nobody can believe this, that when somebody comes from Canada
Take loan. Canada is more prosperous than UK. हाँ जी हाँ जी There's a brother in Vancouver that wishes to see Baba. He wants to come in the summertime. Does he recommend coming in the summer because of the heat, or would you recommend more coming in the fall, winter? एक भाई है वैंकूवर वैंकूवर सिटी से आना चाहते हैं रेमंड Yes. रेमंड हाँ यस वो एकदम गर्मी में आना चाहते हैं अच्छा तो आप क्या सुझाव देंगे वो आए और उसने ये कहा कि सर्दी गर्मी तो चलती रहती है मैं अगस्त में फिर भी जाऊंगा हिम्मत कर रहा है उसके लिए क्या क्यों इनकार क्यों किए थे because Baba is telling probably he has contacted Baba also. Okay. So Baba is telling that he has told that cold and hot and cold always it will be. Yes. The winter and the summer season it will be there forever. Yes. So it doesn't matter. Okay. I will come to meet Baba in August. So one who is courageous. Yes. So why should Baba restrict him? That's true. Okay. हुसैन भाई छोटे आदमी न होते गरीब आदमी न होते तो कुमार का दादी इनको निकाल के बाहर कर देती नहीं करती बेकार सा जिनको वो निकाल के बाहर कर देती है तो उनको बाबा उठा लेते हैं If Hussein Bhai was not a small, a person of small identity, if he was not poor, would Kumarika Dadi throw him out? So the one whom Kumarika Dadi threw out, Baba. He is the first students in foreign Oh, yes. in advance. Wow. Wow. That's impressive. The first spirit outside India. Wow. आप बेसिक नॉलेज में कब से आए हैं? मैं 87 से और एडवांस से कब आए थे? से 95 था शायद। नेक्स्ट टाइम 94 का दिसंबर 95 मैं उस वक्त आया था नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने के लिए। ज्ञान मिलाने वाला कौन था एडवांस में? वैसे तो मैं यही सोच रहा दादी ने धक्का दिया उन्होंने मेरा सर्विस का प्रोग्राम ही नहीं बनाया वो कहने लगे सिर्फ 2-3 वीक रहकर आ जाओ अच्छा इंग्लैंड वापस आ जाओ हाँ इतने लंबा ठहरने की जरूरत नहीं 4 महीने अच्छा बहुत ज़्यादा है फिर हम सर्विस के लिए तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते अगर तुम वहाँ में जाना ही चाहते हो अपने खर्च पे रहो कहीं भी जाकर अपने खाओ पियो जहाँ भी खाना पीना है ज़्यादा ही है सेंटर आ गए मुरली सुनी खा के चले गए लेकिन ठहरने का नहीं कर तो उस वक्त अब तो रजाक भाई मिल गया वो डूबते को दिन का सारा मैं सोच रहा था कोई जगह मिले ठहरने के लिए क्योंकि मैंने जाना तो था ही भारत में वरना तुम्हारे लोगों की बातें सुननी पड़ती कि तुम्हारा कैसा ईश्वरीय परिवार है कि 4 महीने नहीं रख सकते तो फिर तो वो अब्दुल रज़ाक भाई एयरपोर्ट से ही चले गया मैं तो बहुत खुश हुआ चले मेरा रहने का इंतजाम हुआ पहले मैं रात के दोबारा आया फिर अभी रज़ाक भाई उनको उठाना आपका फर्ज है मैं सोच रहा था वो अपने रसूलुल्लाह भाई हमें दोनों सोच रहे थे वो आपको न कहीं उठा ले जाए कोई भी फैसला करने से पहले फैसला करने वाले तो आप हैं अपने लिए लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले ये देखना है कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है अगर आपको राइट मिल गया है मुझे वही राइट लगता है मुश्किल तो यही है मुझे वही राइट लगता है कैसे क्योंकि मैं सोचता हूँ ये फिलॉसफी और ये नॉलेज की क्रिएटर आत्मा है जो क्रिएटर है वो कौन है वो आत्मा है तो आत्मा के अंदर जो क्वालिटीज होंगी वही इस नॉलेज में भी आत्मा होनी तो एक नहीं चाहिए है ना वो सबके सहयोग से होता है नहीं फिलॉसफी सबके सहयोग से बीज कहलाती है तो जो सारी इसमें 2 शाखें निकलती हैं एक तरफ तो लॉजिक और ये साइंस वगैरह आ जाती है दूसरी तरफ आर्ट्स क्राफ्ट हिस्ट्री लैंग्वेजेस वो चली जाती हैं भाषाएं जो भी जो सीड है 2 तरफ की एक भावनावादी हो जाती हैं एक सीड है तो उसका ओरिजिन कहाँ से है उसका ओरिजिन जो है वो फिलॉसफी है फिलॉसफी आत्मा फिलॉसफी आत्मा के मन आत्माओं में भी सीड कौन है
वो सीट तो सबका ही सीट है, वो तो एक ही है ना, वो तो एक है। हाँ, तो वो तो सबका सीट है। उसने तो नहीं बताया, उसने तो ये नहीं बताया कि प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य अच्छा है। तो मुझे उसमें डर लगता है, डर क्या लगता है? मेरे जो ये नजरियात है वो मिलते नहीं, मैच नहीं खाते। आप मेरे क्यों कर रहे हैं? वो बाबा के साथ, बाबा पसंद करते हैं राइट हैंड साइड को, और मैं जाना चाह रहा हूँ लेफ्ट की तरफ। बाबा दोनों पसंद करते हैं। टाइम देखा जाता है, कहीं लेफ्ट हैंड की जरूरत होती है, झाड़ू लगाना है तो लेफ्ट हैंड की जरूरत है ना, पूजा करनी है तो राइट हैंड की जरूरत है। हाँ, समय समय को देखा जाता है ना। तो बाबा तो दोनों को पसंद करते हैं। बाबा दोनों को पसंद करते, मेरा तो ये ख्याल है कि बाबा दोनों को पसंद करते हैं। अगर मुझे लेफ्ट की शाखें पसंद आ रही है, ठीक है, मेरा पार्टी है, सब किस्मत। फिर वही किस्मत मनमत है कि किस्मत है? संस्कारी कहिए ना, किस्मत क्यों कहते हैं? वो संस्कार का दूसरा नाम किस्मत है, संस्कारी को किस्मत कहेंगे, संस्कारी ऐसे बनाए हैं। आपकी मनमत है ना कि यही अच्छा है। वास्तव मैं लॉजिक को बिल्कुल सही समझता हूँ। तो लॉजिक और इसमें ईश्वरीय ज्ञान में मतभेद नामुमकिन है, क्योंकि दोनों सही हैं, वो भी सही है, वो भी सही है। इस वजह से वो टैली मस्ट करना चाहिए, उन्हें जरूर टैली करना चाहिए, क्योंकि दोनों सही हैं। ईश्वरीय ज्ञान में लॉजिक नहीं है, उसमें बहुत लॉजिक है। मुझे तो आपकी हर बात ही लॉजिकल लगती है, 100% लॉजिकल जी। मुझे तो हर बात ही लॉजिकल लगती है। हाँ जी, मैं जब सुनता हूँ मैं बिल्कुल इसे लॉजिक से टैली लगता है, 100% लॉजिक की बात कर रहे हैं। तो 100% आप लीजिए ना। मैं उसी तरह से तो लेता हूँ, फिर है इसी तरह से लेता हूँ लॉजिक। नेगेटिव से नहीं लीजिए। तो मेरा तो फिर जन्म ही फिलासफरों में होगा। फिलासफरी, ये फिलासफी जो शुरू होगी है वापस से होगी शुरू नहीं, क्योंकि दो युग में तो होगी नहीं। नहीं, फिलासफी भी शुरू होती है यहीं से, सतयुग से, संगम युग से। संगम युग में तो हर एक का ही है। हाँ जी, लेकिन वो सतयुग में दबी रहती है फिलासफी। नहीं, उसका जो मूल रूप है फिलासफी का वो यही है कि आई एम सोल। फिलासफी का तंत्र ये है प्रैक्टिकली, उसके बाद और कोई फिलासफी है ही नहीं। स्वयं स्थिर हो जाए तो बहुत बड़ी फिलासफी हो गई। 100% फिलासफी यही है, क्योंकि हर धर्म स्थापक फिलासफर ही होता है। वो फिलासफी देता है दुनिया को, एक नजरिया देता है। मैं इस तरह से सोचता हूँ, तो इसलिए मेरे फिर अब जहन में आता है बादशाह बंदी भी क्या करना। दुनिया से बेजार हो जाता हूँ, कभी कभी बुरी लगने लगती है पूरी दुनिया। कौन सी दुनिया बुरी लगती है? यही वाली, इसकी हर चीज गंदी लगती है। ये गंदी लगती है, दूध पीने को मन करता है। तो सुनो तो फिलासफर्स की बनाई हुई दुनिया गंदी लगने लगती है। फिलासफर तो बनाते ही नहीं। ये इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ये सारे फिलासफी नहीं है। इन्होंने तो एक फलसफा दिया है, फलसफा है ना, फिलासफी है ना उनकी। तो वो तो मजहबी फिलासफी है, उनकी फिलासफी है। तो उन्होंने जो फिलासफी दी है उससे दुनिया गंदी लगती है, या जो शिव बाबा फिलासफी दे रहा है उसमें दुनिया गंदी लगती है? ये अपने अंदर जो फिलासफी है उससे लगती है। आपके अंदर कुछ भी नहीं है, आप तो परमधामवासी आत्मा है। इस सोच की वजह से लगने लगती है। तो इसमें दूध पीता हूँ तो उसमें भी मुझे गंदगी सी नजर आती है कि उसके थनों से दूध निकाल रहे हैं, गंदी है बिल्कुल। गाय भी गंदी है, दूध भी गंदा, फिर वो दही जमती है, उसको करते हैं, दिल ही नहीं चाहता किसी चीज। हमारी 9 इंद्रियों में से क्या निकलता है? चलता है वो गंद निकलती है। तो फिर दूसरों से मजबूरन खाना पड़ता है। दूसरों से हम नफरत बाद में करें, पहले तो अपने से। वो अपने आप से नफरत होने लगती है, उससे बेजारी ज्यादा होती है दुनिया से। इसलिए जो आत्मिक स्थिति में लगातार रहेगा तो उसको कुछ भी खाने पीने की दरकार नहीं रहेगी। हवा से ही सब कुछ, सारे 5 तत्व मिलते रहेंगे। बढ़िया फिलासफी पकड़ नहीं गए अब। शुक्रात घटिया फिलासफी की तरफ, बढ़िया की तरफ नहीं जाती। बढ़िया है शिव बाबा की फिलासफी, उस तरफ नहीं जाती। नहीं, यही पकड़ना पड़ेगा लास्ट में, आपको यही पकड़ना पड़ेगा और आपको देवता बनना पड़ेगा, पहले जन्म में जाना पड़ेगा। समझा? वो तो पहले जन्म में तो जाना ही पड़ेगा, तो आपको देवता बनना ही पड़ेगा।
जी। फिर तो नाम को क्या करना, नहीं 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 नहीं, नहीं हमारा ही अच्छा है, नहीं ठीक है। महत्व है नंबर शायद आई है, शायद नहीं आखिरी सीट में जाएगी। आपको स्मृति जो आ रही है वो बीच वाली आ रही है। द्वापर युग का हाँ सतयुग तो भूल चुका हूँ, तो द्वापर याद आता है। बाबा को तो आपको सत्य याद दिलाने आया, द्वैत नहीं याद दिलाने आया। द्वैत माना दो दो बातें, द्वैत से बनता है द्वापर, सत्य एक है। एक तो एक जगह रहेगा, वो उसमें चल नहीं सकता, वो चलाव पैदा होगा तो दो होने चाहिए। एक जो होगा वो एक ही जगह होता रहेगा। वो सत्य साईं बाबा पहले जन्म से लेकर के और आखिरी जन्म तक भी रहता है, लेकिन आप उसका साथ छोड़ देते हैं, आप प्रभाव में आ जाते हैं। मैं बहुत जल्दी प्रभाव में ये नहीं होना चाहिए। बाबा आपको राजा ही देने आया है, जन्म जन्मांतर की अनेक जन्मों के राजा बने। दुनिया को राजा बनूंगा तो बहुत दुनिया को नहीं दुनिया को नेक रास्ता दिखाइए, ऐसे राजा नहीं बनना, अच्छा रास्ता दिखाने वाले राजा बनना। लेकिन कामयाब न होने का कारण है संग दोष और अन्न दोष। आपको घर में बढ़िया माल मिल रहा है तो क्यों इधर उधर क्या फायदा नहीं। ये संग का रंग एक शिव सुप्रीम सोल को छोड़ करके सबको लगता है, रामकृष्ण की आत्मा को भी संग का रंग लगता है। इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो हमारे घर के जाए तो फायदा हो, तो पुराने हैं पुराने पापी आत्मा। Baba, particularly, he will become. I will. You have to become. You will have to become Devta. And you will become a deity. आप ही देवता नहीं बनेंगे तो एडवांस पार्ट को कोई फाइटर देवता नहीं बनेगा। हाँ, स्वर्ग के गेट में आप अड़ जाएंगे, किसी निकलने नहीं देंगे, बेहद बन के आ जाएंगे। If you yourself don't become a deity, none of the other foreign people won't become deity. You will yourself form a big wall in front of heaven's gate. Neither will you move forward nor will you allow others to go forward. That's true. So how can you ever escape from becoming a deity? वो कैसे दिखाई वो खेत वाली, जहाँ इनको विमर्श किया बाबा ने। कहीं बार मैं बार बताया, देखिए आप विमर्श किया तो बोल रहे नहीं कि कोई मेरे जैसा हमशक्ल था, उसको बोला जा रहा है। इसमें ऐसे तो फालतू कुछ भी नहीं, इस ड्रामा में जो कुछ भी है सब कल्याणकारी है।